अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Alhamdulillah, once again I welcome you all to this another 15th session of e-Ta'aleem. And Wednesdays have been dedicated to some sort of learning is always, of course, it's every week. हर हफ्ते हम कुछ ना कुछ सीखते ही हैं, लेकिन ख़ास करके जो Wednesday का दिन रहा है अब तक, Alhamdulillah, has been dedicated to some issues around fiqh, मसले मसाइल के हवाले से। और I was at home, before I came to do this online session, and I was speaking with my daughters, and I said, in which, how many topics we've done so far on Wednesdays. And my oldest daughter, she says, you shouldn't mention my name. Okay, so no mentioning her name, but she said, Daddy, it will be fourth. So I said, well, from 15th, if it is 15th session, then I think it should be fifth. And then I had to go on YouTube channel and just to see, what topics we have covered. So we are on fourth one today. And just to give you a quick reminder, it's always good to take stock of what we have done so far, so that you can understand, if you're giving your time for these sessions, half an hour every day, not again every day, 3 days a week, what are you gaining from it? And it's only when you judge something, जब आप खुद ही एहतसाब करते हैं कि आपने आधा घंटा दिया तो आपने अचीव क्या किया। और ये मेरे ख्याल से आपको हमेशा करना चाहिए कि जब भी आप किसी सेशन से उठें तो आप उठने के बाद खुद से सवाल करें, यू नीड टू क्वेश्चन योरसेल्फ कि आपने आज यहाँ से क्या हासिल किया है। What have you gained? What have you achieved from this session? So alhamdulillah, if you can recall, I wish if I had interaction with you, then I would expect some reply from you all. But does anyone remember what did we do when we had the first session, which was on fiqh, and that was one of the Wednesdays? Can you recall they happen in our life? For example, मौजूदा हालात में अगर किसी का इंतकाल हो जाए, after few days we get along with the life. We don't carry that sorrow which is at first instance. Why? Because we forget it. And this is in us by Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala has made us like this. कि अल्लाह ने हमें से बनाया कि हम चीज़ें भूल जाए। अगर हम इनको हमेशा याद रखें तो हमारी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके पे चलना मुश्किल हो। And it should be done on daily basis. खुद को हम कहें, और as you must have heard it before, जब हम दुआ पढ़ते हैं, जब सुबह उठते हैं, we make dua to Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi allazi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala, we praise Allah subhanahu wa ta'ala for giving us life after death. तो ये सब चीज़ें भूलनी नहीं चाहिए, लेकिन इंसान वो भूल जाता है। तो inshallah we will be going through some question and answers. And again, as I said, based on my experience, what people they ask us or ask me, I have put these questions. But again, if you have got any questions, ask any responsible alim-e-deen whom you know, or if you want, and if you have my number, you can text me directly. If I can find reply to those answers in books, I'll reply to you. Otherwise, I'll contact some alim-e-deen and get back to you. And again, before I forget, inshallah, on Saturday at 3 in the afternoon, we are bringing special program which is on the topic of healthy Ramadan. और ऐसे तो आप मुझे ही बर्दाश्त करते हैं ना, you bear me for half an hour, and not half an hour. If I calculate 15 times 30 minutes, so it will be maybe for good many hours you have been hearing me. But inshallah on Saturday, which most likely we will be in the month of Ramadan,
इंशाअल्लाह वी विल बी हैविंग डिस्कशन विद वन ऑफ द मेडिकल डॉक्टर्स के उनके साथ एक हम डिस्कशन करेंगे कि हमारा रमज़ान कैसे हेल्थी हो। इंशाअल्लाह ही विल बी देयर इंशाअल्लाह, समवन हु इज़ बोर्न एंड ब्रेड हियर, and there should be information either on the screen or inshallah it will be coming sometimes. We will pass on our broadcast list, and plus there is number as well. It's my number, okay? So anyone who sends text, he will know, but anyone who doesn't have, if you have got any particular issues you want me to raise in that program, do text me, or either there will be event which will be created. I don't know whether there can be any comments can be put on that event. You can do that as well, so that we know exactly if there is any issue that can be raised in that program. तो अब इंशाल्लाह शुरू करते हैं, तो पूरी तवज्जो के साथ सुने। और again I'm saying these answers I have got from books, but anywhere if you find anything, या अगर कोई इन जवाबात में से कुछ लगे कि सही नहीं है तो मेरी इस्लाह ज़रूर करें इंशाअल्लाह। most of the answers they are from Bahar Shariat, or either they are from the fatawas of our renowned ulama inshallah. So very first question inshallah: if a fly, smoke or dust enters the throat, what happens? You're fasting. Maybe Friday or maybe Saturday is going to be our fast. It's nice weather, but sometimes it becomes windy. You're talking and all of a sudden fly comes in your mouth. You're fasting. What happens in that state? So the answer is, if a fly, smoke or dust enters the throat, it will not break the fast. This applies even if the dust is from flour, which flies when being ground by the mill or when the flour is sieved. तो सवाल ये है कि अगर मक्खी या कोई भी ऐसी छोटी जो मखलूक है, और या धुआं, स्मोक या डस्ट, गर्दो गुबार अगर हमारे हलक में चला जाए, ओके, तो क्या इससे रोज़ा टूटता है कि नहीं? तो हमारे उलमा फरमाते हैं कि नहीं, इससे रोज़ा नहीं टूटता। और चाहे ये आटा भी हो, आटा जब, अब यहाँ तो ये मिसाल देना इतना मुनासिब नहीं है, लेकिन जैसे जहाँ पर आटा पीसा जाता है, उसको ग्राउंड किया जाता है, तो वहाँ गर्दो आटा उड़ता है। तो अगर वो भी हलक में चला जाए, या घर में जब आटा सीव करते हैं, उसको छानते हैं, तो उस वक्त भी आटा उड़ता है, तो अगर वो आटा भी गर्दन में चला जाए यानी, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। So this is the first question. Second, if you apply oil on the hair or surma on the eyes, and if the effects of the oil or surma are left in the throat, or if the saliva is colored due to the surma, what will happen in the state of fasting? तो मैं इसको उर्दू में दोहरा दूं सवाल को, कि अगर आपने ऑयल लगाया सर पर, which is very rare, and I will say our brothers, I think हमारी माएँ और बहनें तो ऑयल लगाती हैं, लेकिन ख़ास करके मर्द हजरात ये लगता है ऑयल से बहुत दूर भागते हैं। लेकिन ऑयल लगाना, टू अप्लाई ऑयल इज़ द सुन्नह ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सुन्नत समझ कर ही उसे लगाएं। और हुजूर तो इतना तेल लगाते थे कि आला हज़रत कहते हैं कि तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रज़ा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। यानी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू अप्लाई सो मच ऑफ ऑयल कि फरमाते कभी कभी वो ऑयल के ड्रॉप्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस पे नज़र आते। एंड आला हज़रत ही सेज दे आर लाइक स्टार्स ऑन योर शाइनिंग फेस या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो तेल लगाना, टू अप्लाई oil is the sunnah of Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Either it is on head, if you've got hair, then on your hair, as well as on your beard. So now the question is, if you apply oil or if you apply surma है ना, वो भी सुन्नत में से है। और ये लगाने के बाद if you felt the effect of these things in your throat, होता है ना कभी कभी when you apply eye drops you can feel that in your throat, या कभी कभी कोई ठंडा तेल होता है, there are certain oil
दे गिव कूलनेस इन योर हेड, तो अगर उसको भी लगाएं तो उसकी ठंडक भी गले में महसूस होती है. कभी कभी once you have put something in your eyes and you can see, if you spit, तो सलाइवा जो थूक होता है तो उसमें भी उसके आसार नजर आते हैं. तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? योर फास्ट विल नॉट ब्रेक और योर फास्ट विल नॉट बी ब्रोकन. आपका रोजा इससे नहीं टूटेगा. इससे उलमा ने यह भी फरमाया कि आंख में जो हम दवा भी डालते हैं उससे भी रोजा नहीं टूटता. तो ये बात बिल्कुल जहन में रखें कि सुरमा लगाना, ऑयल लगाना और उसका असर अगर हमें गले में भी एहसास हो, गले में भी महसूस हो, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता. ये दिस इज़ वेरी फेमस क्वेश्चन. आई थिंक देयर हैजंट बीन इवन वन रमदान where, just to make sure that I'm not exaggerating it, लेकिन अक्सर रमज़ान में many a times we get this question about someone vomiting, and हो जाता है because you are hungry and maybe if you eat a lot in Sahri or if someone really has problem with system, it can be anything because you are hungry, headache and everything, कोई भी वजह हो सकती है. तो कभी बंदा वॉमिट कर देता है, उल्टी हो जाती है, उसे कै हो जाती है. तो यहाँ पे क्वेश्चन आप गौर से सुने. इफ वन इंटेंशनली वॉमिट्स अ माउथफुल एंड ही रिमेंबर्स दैट ही इज फास्टिंग, अगर किसी की मुंह भर कै या मुंह भर उल्टी जानबूझकर हुए, यानी उसने मुंह में उंगलियां डाली, ओके, ही डिड समथिंग एंड देन ही वॉमिटेड माउथफुल, यानी इतनी वॉमिट थी कि मुंह भर के वॉमिट हुई, and he knew he is fasting whilst he was doing this, और उसको पता था कि वो रोजे से है, तो शरीयत का क्या हुक्म है? तो फरमाया if one intentionally vomits a mouthful and if he remembers that he is fasting, then the fast is definitely broken. अगर जानबूझकर कै की, जानबूझकर, अनजाने में नहीं, जानबूझकर कै की, और अगर मुंह भर हो गई है उल्टी और उसे पता था कि वो रोजे से है, तो उसका रोजा टूट जाएगा. हाँ, अगर लेकिन वो वॉमिट है, जैसे मिसाल के तौर पर कभी सुबह सुबह लोग होता है कि लोग जब खांसते हैं या गला साफ करते हैं तो उसमें हो जाता है. बट इफ इट्स लेस देन अ माउथफुल, अगर मुंह भर के नहीं है, माउथफुल नहीं है, तो उससे रोजा नहीं टूटेगा. लेकिन अगर अनइंटेंशनली हो, जानबूझ कर ना हो, अंदर से आपकी तबीयत की, योर सिचुएशन बिकम्स सच or your situation became such that you vomited, तो अब जो वॉमिट आपने इंटेंशनली नहीं की है, वो कितनी भी हो, इवन इफ इट इज फुल ऑफ बकेट, कि अगर उस वॉमिट से बकेट भी भर जाए, एज लॉन्ग एज यू डोंट टेक इट बैक, अगर आप उसको अंदर नहीं लेते तो आपका रोजा नहीं टूटेगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. देयर आर टू सिचुएशंस हियर. वन वेयर यू वॉमिट इंटेंशनली, और वहां पे अगर मुंह भर कै हो जाए तो आपका रोजा टूट जाएगा. अनइंटेंशनली वॉमिट कितनी भी हो, एज लॉन्ग एज यू डोंट टेक इट बैक, आपका रोजा नहीं टूटेगा. और यहां पर एक चीज और मैं आपको बताता चलूं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशंस और भी अगर आगे आती हैं कि जिसमें कसदन या बिला किसी कस्त के, यानी either you do it intentionally or unintentionally, if your fast breaks for some reason, तो अब ये कोई समझे नहीं कि भाई अब तो मेरा रोजा टूट ही गया है ना, अब मैं इफ्तार के लिए तो बड़ा टाइम है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक एग्जाम्पल ऑफ टाइम वी आर इन राइट नाउ, वी विल बी डूइंग इफ्तार समवेयर अराउंड 8:30. तो आप ये सोचे कि भाई मेरा रोजा तो टूट ही गया, इट्स 10 in the morning, अब मैं दिन भर खाऊं पीऊं, मजा करता हूं, मैं ड्रिंक, लेट मी ड्रिंक, लेट मी ईट. But our scholars, they say whether it is intentional or unintentionally, if you break your fast, then you need to make sure until the time of iftar you should stay like a fasting person, and it's necessary and wajib for you to do that. तो रोजा टूट भी जाए तो उसके बाद आपको ऐसा नहीं कि आप आजाद हो गए, अब आप खाएं पिएं कुछ भी नहीं. अब उलमा दे से नो, you need to abstain from fasting, abstain from eating and not fasting, abstain from eating and drinking until sunset. I hope everyone was clear on this question. Third,
one intentionally breathes in smoke on condition that he remembered that he was fasting. कि आप कहीं चल रहे थे, स्मोक आपने इनहेल कर ली, ओके, यू डिड दैट, ओके, ऑन कंडीशन दैट ही वाज फास्टिंग, उसको पता था कि वो फास्ट कर रहा है, तो क्या होगा? सो इफ वन इंटेंशनली ब्रीथ्स इन स्मोक देन द फास्ट विल बी ब्रोकन. अगर आपको पता था कि आप रोजे से हैं और आपने स्मोक इनहेल किया तो आपका रोजा टूट जाएगा. कब? जब आपको याद है कि आप रोजे से हैं. नो मैटर इफ इट वॉज द स्मोक फ्रॉम एनीथिंग, किसी भी चीज से वो स्मोक आ रही हो, किसी भी चीज से धुआं आ रहा हो, लेकिन जानबूझ के अगर आपने उसे इनहेल किया है तो आपका रोजा टूट जाएगा. और यहां पे खास कर हमारे घरों के लिए एक मसला, टू द एक्सटेंट इफ द अगरबत्ती, द फ्रेग्रेंस ऑफ अगरबत्ती, मैं इंसेंस स्टिक नहीं बोलूंगा, नहीं तो लोग बोलेंगे कि क्या मैं बोल रहा हूं. ओके, मे बी अवर ब्रदर्स हु अंडरस्टैंड इंग्लिश, फॉर देम दे विल नो, बट अगरबत्ती हमारे घरों पर होती है. व्हेन यू एंटर यू सी इन देम ब्यूटीफुल बॉक्सेस, माशाल्लाह. हमारे जो बुजुर्ग हैं वो उसमें लगाते हैं घर में खुशबू के लिए. बट आई विल से अवॉइड इट इन द मंथ ऑफ रमदान. रमदान में अगरबत्ती को छुट्टी दें ज़रा. और इसकी वजह यह है कि अगर आप वो धुआं जल रहा था और अगर आपने उसकी खुशबू इन द सेंस कि आपने उसका धुआं जो स्मोक निकलती है, फरमाया टू द एक्सटेंट इफ द इंसेंस ऑफ द फ्रेग्रेंस वाज बर्निंग एंड ही प्लेस्ड हिज फेस नियर, उसने चेहरा करीब में किया, एंड ही इनहेल्ड द स्मोक फ्रॉम इट थ्रू नॉस्ट्रिल्स, अपने नाक से उस धुएं को अंदर लिया, द फास्ट विल बी इनवैलिडेटेड. ओके, तो नाजुक मसला है, रोजा हम इतनी मशक्कत के साथ रखते हैं, तो ख़ास करके यहाँ पे मैं गुजारिश करूँगा कि अगरबत्ती को कम से कम रमज़ान के महीने में अनटिल, और इफ़ नॉट इन रमज़ान, अनटिल इफ्तार डोंट पुट अगरबत्ती, कि ताकि हम इससे बस. और ख़ास करके स्मोकिंग हुक्का विल ऑल्सो ब्रेक द फास्ट. अल्लाह जाने कहाँ से ये चीज़ आ गई है. तो और अगर ख़ास करके हुक्का का भी अगर आपने लिया, फरमाया कि विल ऑल्सो ब्रेक द फास्ट इफ द पर्सन ही रिमेंबर्स दैट ही वाज फास्टिंग, एंड अगेन इफ समवन डज इंटेंशनली देन देयर इज गोइंग टू बी कफारा एज वेल. फॉरगेटफुली ईटिंग और ड्रिंकिंग समथिंग, भूल कर अगर किसी ने कोई खा लिया और पी लिया तो इस पर क्या है? मिसाल के तौर पर आदत है ना, 1-2 रमज़ान कभी कभी लग जाते हैं कुछ लोगों को यूज टू होते हुए. For example, someone has got this habit straight away, when I wake up, straight downstairs and I'll have a glass of water. Okay? याद ही नहीं था, you didn't remember that you were fasting, and if it happens, भूल कर, forgetfully, if you eat and drink something, what will happen? So if you eat or drink, और कुछ और भी बातें उसके आगे, जिन चीज़ों से मना किया जाता है ना, जो खास करके ताल्लुकात होते हैं हस्बैंड वाइफ में, अगर गलती से मतलब भूल कर हो गया, विदाउट रिमेंबरिंग दैट ही इज फास्टिंग, द फास्ट डज नॉट ब्रेक. एंड द रूल इज सेम फॉर फर्द और नफिल फास्ट, कि चाहे वो नफिल रोज़ा हो चाहे वो फ़र्ज रोज़ा हो, इन दोनों में एक ही ये सूरत है. भूल कर, जानबूझ कर नहीं. लेकिन जैसे ही आपको कोई बताए कि आप रोज़े से हो, यू नीड टू स्टॉप, इवन टू द एक्सटेंट इफ यू गॉट समथिंग इन योर माउथ, यू नीड टू स्पिट इट बैक, उसको बाहर निकाल देना है. अगर आपने उसको अंदर ले लिया बताने के बाद तो फिर आपका रोज़ा टूट जाएगा. लेकिन भूल कर अगर आपने खा पी लिया एंड यू डिडंट न्यू व्हाई यू वर ईटिंग, कि आप रोज़े से हैं, तो आपका रोज़ा नहीं टूटेगा. लेकिन भूलना यानी यू वर कंप्लीटली स्विच्ड ऑफ, यू डिडंट नो एंड देयर वाजंट एनीथिंग इन योर माइंड दैट यू आर फास्टिंग. We have got 11 questions. We are on 6th one, and hopefully inshallah we will cover them all. If a person while fasting put a dyed thread in his mouth, due to which the saliva became tinted with its color, and he then swallowed the saliva, the fast will, excuse me, okay, if I make mistakes while reading. Sometimes if you read something again and again, I think it becomes difficult to keep track of because I've read it so many times since last night. I've been working on it. Yeah. So if a person, he होता है ना, मेरे ख्याल से खास करके हमारी माँ और बहनों के साथ होगा, वो जब कुछ सिलते हैं, धागा वो होता है ना मुंह में डाल के, when they try to put it in the needle, और या कोई भी और एग्जाम्पल के साथ लिया जा सकता है कि अगर आपने धागा थ्रेड, इट वाज डाइड, ओके, देयर वाज सम कलर टू इट, इफ यू पुट इन योर माउथ एंड द कलर वाज लेफ्ट, कलर उसने छोड़ा, और सलाइवा जो था आपका थूक वो
कलर का हो गया, यानी उस कलर का गलबा आपके, और यह कलर उस सलाइवे में, उस थूक पर नजर आने लगा और आपने उसको पी भी लिया, निगल गए आप, यू swallowed दैट सलाइवा, द फास्ट विल बी ब्रोकन, रोजा टूट जाएगा। इसी के साथ साथ वन शुडंट हैव दिस हैबिट ऑफ बाइटिंग नेल्स। ओके, किसी ने नेल्स बाइट किए और अगर वो इफ इट वाज मोर देन द साइज ऑफ सेसमी सीड, तो ऐसा कुछ रहा तो उससे भी रोजा उसका टूट जाएगा। Does injection in muscle or vein break the fast? Again, this is something very common question which is asked almost every year, or if not every year, many times it's been asked. Many people, they have asked me as well about this question कि इंजेक्शन हम लेते हैं तो चाहे वो किसी भी वजह से हो, इंजेक्शन आपने अगर लिया, चाहे वो नसों में हो, वेन्स में हो, चाहे वो मसल्स में हो, आपके गोश्त पर, जैसे कभी कुछ इंजेक्शंस आपके मसल्स में दिए जाते हैं, कुछ वेन्स में दिए जाते हैं, तो अगर रोज़े की हालत में इंजेक्शन लिया जाए तो क्या है? फरमाया, बाय रिसीविंग एन इंजेक्शन द फास्ट विल नॉट ब्रेक, वेदर इट इज़ इंट्रामस्कुलर और वेदर इट इज़ इन योर वेन्स, इससे रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन जब भी आपको इंजेक्शन लेना हो और अगर आपको पता नहीं कि इंजेक्शन कैसा है, तो फर्स्टली यू नीड टू कंफर्म विद योर डॉक्टर। आपने डॉक्टर से कंफर्म करें कि ये इंजेक्शन आप दे रहे हैं वो किस लिए है और उसे कैसा दिया जाएगा। फिर जिस किसी रिस्पॉन्सिबल आलिम दीन से आपके ताल्लुकात हैं उनसे आप राब्ता करें और कहें कि ये सिचुएशन है और उनसे रहनुमाई हासिल करें। लेकिन अगर आपको पता ही है कि ये इंजेक्शन मसल या वेन्स में जा रहा है तो उस इंजेक्शन से आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। योर फास्ट विल नॉट ब्रेक if the injection what you take is intramuscular or whether it goes in your veins. Will the blood test in the state of fasting break the fast? Again, very common question asked many times कि अगर हम ब्लड टेस्ट कराते हैं रोज़े की हालत में तो क्या इससे रोज़ा टूटेगा या नहीं? Having blood removed from the body or bleeding as a result of being wounded, तो चाहे वो हमने किसी टेस्ट के लिए खून निकलवाया हो और या कहीं चोट लगी हो, आपको कोई इंजरी लगी कि जिससे खून बहा, तो इन दोनों सूरतों में that does not break the fast, इससे रोज़ा नहीं टूटता। However, removing blood from the body either through a blood test or donating blood etc. should not be done whilst fasting, as it is makruh or dislike to do anything which may lead to weakness. तो हमको पता है ना कि खून हमारी बॉडी में ज़रूरी है, तो अगर ज़रूरत ना हो, इफ़ इट्स नॉट नीडेड यू शुड अवॉइड इट। लेकिन अगर हो भी जाए तो इससे आपका रोज़ा नहीं टूटता। और फिर फरमाया, रिसीविंग ब्लड थ्रू द वेन्स ऑल्सो डज नॉट ब्रेक द फास्ट। तो ये मसला भी है, इसको भी याद रखें। लेकिन जितना हो सके अगर बच सकते हैं तो बचें, लेकिन अगर कोई ब्लड टेस्ट कराता है तो उससे उसका रोज़ा नहीं टूटता। यूजिंग टूथपेस्ट while fasting, again this is one of the questions which comes regularly. टूथपेस्ट, और हमको पता है कि जब हम रोज़े से होते हैं, और हमको क्या, हमारे रब को पता है, अल्लाह को पता है कि जब हम फास्ट करते हैं द स्मेल विच कम्स फ्रॉम माउथ समटाइम इट विल बी अनप्लेजेंट, कि वो हो सकता है कि वो जो बू आती है मुंह से वो थोड़ी अनप्लेजेंट होती है, नागवार होती है। लेकिन हमने सुना है ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि फरमाया गया कि अल्लाह को रोज़ेदार की खुशबू, मुंह से निकलने वाली खुशबू मुश्क से भी ज़्यादा महबूब है। ओके, सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला लाइक्स दिस। ओके, बट अगेन व्हेन यू गो टू वर्क, people they try to make sure that they keep their mouth clean, because when you interact with people, लोगों से बात करना होता है, मुलाकात करनी होती है, तो इसके लिए भी यही फरमाया गया, it is makruh, dislike to brush the teeth whilst fasting with toothpaste. Okay, अगर आपको साफ करना है, you can just use your brush without applying on it any toothpaste on it. The reason being, if any part of the toothpaste, no matter how small, goes into the throat, it will break your fast.
And many of you will agree it is not easy that you apply toothpaste and you brush your teeth and it won't go below your throat. Better to avoid it. हाँ, अगर आपको मुंह साफ अपना रखना है, you can use toothbrush without applying any toothpaste on it and brush your teeth, and I think that will help you. कि आपको वो हेल्प करेगा कि अगर आपको लग रहा है कि मुंह से स्मेल आ रही है तो इंशाल्लाह दैट स्मेल विल गो. Extracting tooth whilst fasting, ये भी तकरीबन for last few years I think I have received people they've asked me कि अगर हम रोज़े की हालत में दांत डेंटिस्ट के पास जाएं क्या है. तो यहाँ पर उलमा फरमाते हैं कि if whilst fasting one had his tooth extracted and the blood came out and flowed in below the throat, then even if this happened while sleeping, the qaza for the fast is wajib. यानी उसको उसकी qaza करनी पड़ेगी. तो जहाँ तक हो सकता है अवॉइड करें. अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो आप दांत निकलवाने के लिए ना जाएं. डेंटिस्ट के पास जाने से भी बचें, क्योंकि it's very likely that once either they wash it, although they have suction, but still sometime we can, people who have been to dentist, they will agree कि गले के नीचे से तो चला ही जाता है, गले के अंदर पानी वगैरह, तो बचना चाहिए. और अगर ऐसी सूरत हो जाए तो then our ulama they say qaza for that fast is wajib. We have nice weather today. And I think for last good few years, alhamdulillah, for a good number of days, we have seen bright weather during the month of Ramadan. अच्छा weather होता है, खुला हुआ weather होता है. लेकिन बारिश भी होती है कभी कभी. As we all know, we can't trust weather in UK. All of a sudden it might change. And even nowadays, during daytime it's bright, it's sunny. But as soon as sun sets, we start feeling cold. ठंडक आ जाती. इसी के साथ साथ बारिश कब आ जाए पता नहीं. अब रोज़ा रख के बारिश में अगर आप चल रहे हो और अगर जो बारिश का पानी है, इफ़ इट एंटर्स योर थ्रोट, और चाहे वो हेल हो, चाहे स्नो हो, एनीथिंग, स्नो इज़ वेरी अनलाइकली, बट यू डोंट नो, देयर इज़ नथिंग बियॉन्ड द कुदरत ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. अगर ये हो तो क्या है? तो फरमाया रेन वाटर एंड स्नो व्हेन इट एंटर्स द थ्रोट इट विल इनवैलिडेट द फास्ट. ये आपका रोज़ा तोड़ देगा और इससे आपका रोज़ा टूट जाएगा. तो एहतियात करना है. अगर बारिश वगैरह हो तो अगर कुछ ऐसा हो तो वी नीड टू मेक श्योर वाटर विच गोज फ्रॉम आउट इनसाइड अवर माउथ वी स्पिट इट बैक, कि हम उसको फ़ौरन उसकी कै कर दें या उसको थूक दें बाहर. अब इसमें ये सब सिचुएशन बताई, लेकिन अगर इंटेंशनली कोई अपना रोज़ा तोड़ता है, इंटेंशनली जानबूझकर अगर किसी ने रोज़ा तोड़ दिया, तो जब भी आपसे कोई ऐसी चीज़ हो, refer back to ulama, get their guidance. But let me tell you, agar for example there are our teenagers who are baligh, who are matured as per Sharia, they are adult as per Sharia, and if they don't fast, even if when they have strength, that means you are missing your fast without any reason. Remember that we are, firstly, अगर रमज़ान का कोई भी रोज़ा, चाहे जिस पे क़ज़ा हो, चाहे जिस पे कफ़ारा हो, कुछ भी, लेकिन एक मरतबा अगर रमज़ान का रोज़ा छूट जाए तो उसकी बरकतें इंसान किसी और महीने में हासिल नहीं कर सकता. यू कांट गेट सेम ब्लेसिंग व्हाट यू मिस इन द मंथ ऑफ रमज़ान. तो कफ़ारा क्या है अगर कोई जानबूझ के अपने रोज़े को तोड़ता है? तो द फर्स्ट ऑप्शन विच शरिया गिव्स इज टू फ्री वन मेल और फीमेल स्लेव, कि गुलाम आज़ाद करना है. अब तो गुलाम है ही नहीं. सो देन वी कैन गो फॉर सेकेंड ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन इज वन शुड कीप 60 फास्ट वन आफ्टर द अदर. 60 रोजे रखने पे दर पे. यहां एक महीने के रोजे कुछ लोगों को भारी पड़ जाते हैं. आपने एक रोजा जानबूझ के अगर तोड़ा, जानबूझ कर, तो कफ़ारा होगा और फिर उस एक रोजे के कॉम्पनसेशन में आपको 60 डेज फास्ट करना होगा. 60 दिन पे दर पे, अप टू द एक्सटेंट इज बीन मेंशन बहारे शरीयत. अगर 59th डे पर भी, और इवन ऑन 59th डे, इफ यू मिस वन फास्ट देन यू हैव टू रीस्टार्ट अगेन. योर काउंटिंग शुड स्टार्ट अगेन फ्रॉम फर्स्ट. सो इट्स नॉट ईजी. डोंट मिस योर फास्ट फॉर जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉट कीपिंग इट. वैलिड रीज़न हो, उलमा से
पूछें and ask them, and then that's different situation. But if there is no any other reason, if you don't keep fast, or if you break your fast, these are things. अब अगर ये भी रखने की ताकत ना हो, तो then our ulama, they mention that he or she should feed 60 needy person a stomach full meal for 2 meals. कि फरमाया कि 60 लोगों को पेट भर के 2 वक्त का खाना खिलाएं. So these were few rulings in regards to fasting, which I felt are which we see happening, when we fast, and this can be of help. So I request all brothers to take these rulings seriously, इन मसाइल को seriously लें. और ख़ास करके जो एक मसला मैंने कहा था कि अगर किसी वजह से जैसे कै हो जाए, किसी को उल्टी हो जाए, और अब अगर उसका रोज़ा उस सिचुएशन में जो मैंने मसला बनाया था, इंटेंशनली अगर उसने माउथ फुल मुंह भर के कह किया और उसका रोज़ा टूट गया, तो अब इस सूरत में ये नहीं कि उसे खाना पीना है, बल्कि उसे मगरिब तक रोज़ेदार ही की तरह रहना होगा. और ये फरमाया गया ज़रूरी और वाजिब, इट इज़ मस्ट फॉर दैट person. So I hope inshallah al-azim our brothers they must have learned something. I will request, if you feel that you have learned something, जैसे मैंने कल कहा ना कि इल्म नाफ़े, knowledge which is beneficial, and if you feel you've learned something, pass it on to others. Don't stop this process of learning to yourself. इसको आप दूसरों तक पहुँचाएँ कि ताकि दूसरे भी इन मसाइल से फ़ायदा उठा सकें. और इंशाअल्लाह आने वाले हफ्तों में भी रमज़ानों में वी विल बी ऑन सेम टाइम 6 o'clock इंशाअल्लाह, एंड मंडे टू वेडनेसडे आई विल बी कमिंग. और होगा कभी मैं खुद आऊँगा या किसी को अपने साथ लेकर आऊँगा. सो इंशाअल्लाह आई वोंट बी मंडे तक का इंतज़ार नहीं करना है. आई विल बी मीटिंग यू अगेन ऑन सैटरडे ऑनलाइन. ऐसे तो मुलाकात बहुत से लोगों से होती है, बट स्पेशली अवर ब्रदर्स हु आर फार अवे, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह इवन yesterday there were some brothers who sent me messages, they sent feedback. It's all appreciated. It's all appreciated, mashallah. Even a small line what you sent me, after you've seen this, alhamdulillah, it's appreciated. Allah reward you. So inshallah Saturday again, reminder for you, healthy Ramadan. It is going to be with one of the doctors from our community. When I'm saying our community, it's a big community. So someone from Blackburn, inshallah, someone who was born and bred, and someone serving as GP, inshallah, he will be coming online with us, and he is going to help us with few tips, inshallah, so that we can stay healthy in Ramadan. So we can, where we try to excel ourselves spiritually. Likewise, we gain health benefits as well in the month of Ramadan. So I would like to see everyone, inshallah al-azim, on Saturday. Likewise, if you see there are good few programs that are being scheduled on our SDI media, तो उसको भी आप देखते रहें इंशाअल्लाह al-azim. And especially I would like you to, on SDI channel, there are regular 15 minutes, 20 minutes clips which are loaded, which are uploaded on the topic of how to spend Ramadan al-Mubarak. Alhamdulillah. So if you can watch them as well, especially before the start of the month of Ramadan, you can get good understanding. And inshallah, even in the month of Ramadan, they will be uploaded daily, so that you can benefit from it. May Allah subhanahu wa ta'ala keep us all safe and keep us all in His protection. और आज के इस सेशन में अगर कोई मुझसे गलती हुई हो तो अल्लाह उसे माफ़ फरमाए. अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह. और अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.